Hello friends and a very good morning to all of you. I Anchal welcome you all on Adda247 and the topic that we have today is IBPS PO MAINS 2018. So as you all know, mains exams are approaching and this is the time that we need to buckle up, right? तो हमारा एग्जाम आने वाला है, आपको पता है only 15 to 17 days are left. यहाँ पर 15 से 17 दिन बचे हुए हैं. हमें अपनी प्रिपरेशन इन लास्ट डेज में कैसे करनी है and what should we expect from the paper that has to be held in 2018, right? So देखते हैं. पहली चीज, I'll just tell you without wasting time, I'll just tell you certain things, guys. मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि आपको last 15 days में क्या करना है, what you actually have to do. The first thing is, I always ask you to summarize editorial section, right? है ना? Maximum marks जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, maximum marks that come in your examination are from what? Reading comprehension, rearrangement, close test, fillers, and all of these are based on, ये सारे के सारे किस पे based हैं? These are based on, first of all, understanding ability, right? Understanding ability. And it is based on, what else? Reading skill, right? It is based on reading skill. What else? Vocabulary, right? And one important thing is there, guys. Whatever practice we do, whatever questions that we actually solve, or the questions that we take as an example, वो questions जो हम example की तरह लेते हैं, आपको कभी भी आपको वैसे questions exam में नहीं आए होंगे, right? We never get those kind of examples or those kind of questions in your examination, right? So what do we need to do is we get to know the sentence structure as well. ठीक है, जो questions आपके exam में पूछे जाते हैं वो कुछ न्यूज़पेपर की लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो यू नीड टू डेवलप दीज 4 थिंग्स. आपको इन चारों चीजों पे काम बहुत ज्यादा करना है, ठीक है? दिस इज वन पार्ट ऑफ योर पेपर. द अदर पार्ट इज ग्रामर, राइट? द अदर पार्ट इज ग्रामर. ठीक, अभी जो दूसरा पार्ट है दैट इज ग्रामर. लेट्स टॉक अबाउट द मैक्सिमम पार्ट वाला चीज, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स इसमें आते हैं हाउ टू डील विद दिस, ठीक है? इससे कैसे डील करें. देखो हमारे पास बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. वी ओनली हैव 15 to 17 days, राइट? सो लास्ट डे में क्या करना चाहिए दैट एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन योर माइंड, यू कैन इंप्रूव दीज स्किल्स, दीज एबिलिटीज, राइट? फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट समराइजिंग at least 2 articles a day, ठीक है? 2 articles a day. That means what do you have to do? Summarize करना है, ठीक है? Start summarizing or summarize at least 2 articles a day. 2 articles आपको एक दिन में कम से कम summarize करना है. What do I mean by this, right? And why do we do that? मैं बताऊंगी अभी. Everybody asks you to read editorial पढ़ो, इसका पढ़ो, उसका पढ़ो. Everybody asks you to do that. But how? कोई ये बताता है क्यों, कैसे, right? So पहला question है why to read that in the proforma that you want to develop, you want to improve your understanding ability. मतलब आप समझने की शक्ति को improve करना चाहते हो, reading skill को बढ़ाना चाहते हो, vocabularies पता करना चाहते हो that यार ये word तो मैं literal sense में जब use करता हूँ it has a different meaning, but अगर मैं यहाँ पर paragraph में पढ़ रहा हूँ तो उसका meaning कुछ और है ना? So you need to understand the meaning of the vocabulary according to the paragraph, ठीक है? चौथी चीज है sentence structure that helps you out in grammar as well, ठीक है? Now, first question was why to do that? So these are the answers. Next question is how to do it, right? कि summarize करें कैसे करें? Guys, see, wherever you have the editorial section, मैंने हमेशा बताया आपको, wherever you have the editorial section, your editorial section is divided into 3 parts, right? 3 parts में divided है. The biggest part is this, ये सबसे बड़ा part होता है. Agreed? मत पढ़ो इसको, प्रॉब्लम होती है ना बड़ा पढ़ने में हम लोगों को. सो मत पढ़ो इसको, डोंट रीड इट एट ऑल, ठीक है? नाउ सी, दिस पार्ट विल हेल्प यू आउट इन डिस्क्रिप्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई व्हेनेवर यू गो फॉर डिस्क्रिप्टिव यू हैव लेटर राइटिंग, राइट? लेटर राइटिंग होती है. लेटर राइटिंग में यू ऑलवेज गेट अ लेटर टू बी रिटन टू द एडिटर, राइट? एक एडिटर को लिखने के लिए लेटर आता ही आता है. नाउ इन दिस कॉलम you have a lot of letters that are written to the editor, ठीक है? बहुत सारे letters होते हैं यहाँ पर जो editor को लिखे जाते हैं. So you can easily get the context, you can easily get the body of the letter from this, ठीक है? So descriptive will be improved.
दूसरी चीज डिस्क्रिप्टिव में जो होती है वो एसे राइटिंग होती है, राइट, एसे राइटिंग होती है. सो फॉर एसे राइटिंग ऑल्सो यू कैन इम्प्रूव इट फ्रॉम हियर. ठीक है, ऐसे राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगा. कैसे? ना इफ यू नोटिस यू हैव 2 आर्टिकल्स हियर, राइट. आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं? 2 आर्टिकल्स होते हैं, है ना. नाउ वेरेवर यू हैव 1 आर्टिकल, क्या करना है आपको? सी दिस आर्टिकल इज ऑफ लाइक 40 to 45 लाइन्स. ठीक है, 40 से 45 लाइन का ये एक आर्टिकल होता है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड इनटू 3 to 4 पार्ट्स. इफ यू रिमेंबर, जब बचपन में हमें चीजें याद नहीं होती थी, जब हमें चीजें पढ़ने में नहीं आती थी, तो मम्मी या फिर ट्यूशन टीचर हमारी क्या करती थी, उस क्वेश्चन को दे यूज्ड टू डिवाइड इट. और जब कोई चीज छोटी हो जाती है ना, वो आसानी से याद होने लगती है, आसानी से आप उसको समझने लगते हो. इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू लर्न एंड टू रीड समथिंग विच इज शॉर्टर इन कॉन्टेक्स्ट, राइट. So that's what we do. We divide this article into 3 to 4 parts, right? Once you have divided, you have to write it. ठीक है? Write in own words, or rather I would say summarize it in only 2 lines. Write in own words in 2 lines. That means each, वो भी कितना? 2 lines में each part की बात कर रहे हैं. Each part. That means 40 to 45 lines will be summarized to how many lines? 8 lines only. The biggest problem that we get while solving comprehension is we start reading from the beginning, है ना? Starting से read करना start करते हैं. Till we reach the end, what happens? Till we reach the end, we forget what was given there. We forget what was given in the beginning, right? हम भूल जाते हैं पहले क्या दिया हुआ है. So with this technique, you will never forget what you read earlier and what are you reading at the end. क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था उसका important information, whatever the important information was here, this information you have already summarized into 2 lines. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 लाइन पढ़ के समझ लो, है ना? So this becomes easier. Now, when you start summarizing things, जब आप summarize करना start करते हो तो आपकी understanding ability improve हो रही है. पहली बात तो आप read कर रहे हो, है ना? छोटे parts जब read करते हो, when you read small parts, your reading ability improves. You get to know a lot of words through it, so obviously it improves. Essay writing, how will that improve? ये कैसे improve होगा? Because whatever is given over here is a social context, right? ये kind of social context होता है, तो obviously ये भी आपका इंप्रूव होगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको पता चलेंगे ही चलेंगे. एंड द अदर थिंग इज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. व्हेन आई एम आस्किंग यू टू डिवाइड एंड समराइज इट, जब मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप इसको समराइज करो, आप अपने शब्दों में लिखो. व्हेन आई आस्क यू टू राइट इट इन ओन वर्ड्स, ऑब्वियसली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट यू वोंट बी एबल टू राइट इट, राइट. और जब आपको समझ में आने लग जाएगा तो आप इजीली इसको क्या करने लग जाओगे? लिखने लग जाओगे, राइट. सो स्टार्ट विद 1 आर्टिकल अ डे. 5 दिन के लिए 1 आर्टिकल करो. For 5 days, solve only 1 article. After 5 days, for the next 12 days, for the next 10 days, what will you do? You'll start doing 2 articles in a day. एक दिन में 2 articles solve करना start कर देना. ठीक है? 5 दिन first will do. लेकिन after 5 days, solve both the articles, like divide all the both the articles into 3 to 4 parts. Write down it in your own words only in 2 lines. ठीक है? Each part should be of 2 lines only when you summarize it. जब आप summarize करते हो तो उसको 2 लाइन में ही होना चाहिए. So through this you can improve a lot of things. आप सारे पूरे मेंस की प्रिपरेशन करते हो सिर्फ इन 2 पार्ट्स में. ठीक है? सिर्फ इन 2 पार्ट्स में you are preparing yourself for mains examination, be it descriptive or objective questions, right? So this is what you have to do while summarizing. ठीक है? एक तो ये चीज हो गई. ठीक. Second thing is start giving mock test, guys. अभी तक नहीं दे रहे होगे तो बहुत गलत बात है. Take 3 to 4 mock tests in a week. एक हफ्ते में 3 से 4 mock test लो. How do I say 3 to 4 mock tests in a week? Why can't we solve 7 mock tests in a week? No, you don't have to do that. You have to solve 3 to 4 mock tests in a week. Why am I saying that? Listen to me. So suppose we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ठीक है? Suppose we have this. You have to take 1 mock test on Monday. Mock test 1 लो Monday को. ठीक है? Mock test 1. ठीक? 1 लिया आपने. Now what you have to do is, जब आपको solution मिल गया, you have to analyze it. Analyze करने के बाद
when you attempted mock test you could only attempt 60 to 70 questions, right? जब आपने mock test दिया तो 60 से 70 questions ही आप attempt कर पाए थे. But what happened after it? Analysis करने के time, what do you have to do? Analysis करने के time आपको all 100 questions solve करने हैं. Analysis करने के बाद you have to solve all 100 questions, सारे 100 questions को आपको solve करना है, ठीक है, rewrite करने के time. Now, then again you will go for mock test 2 on Wednesday, ठीक है, फिर वापस उसका एनालिसिस करना है. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है. अगेन यू विल अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस. फिर फ्राइडे को यू विल गो फॉर मॉक टेस्ट 3. अगेन यू विल डू व्हाट? एनालिसिस एंड रीराइट इट, ठीक है, ऑल 100 क्वेश्चंस. रीराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. व्हाई? बिकॉज द 30 क्वेश्चंस, द 40 क्वेश्चंस दैट यू लीव व्हाइल अटेम्प्टिंग इट, व्हाट हैपेंस टू देम? व्हाट हैपेंस टू देम? वही क्वेश्चंस होते हैं जो न्यू पैटर्न के होते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं जो आप डील नहीं कर पाते हो, राइट? बट देन इफ यू एनालाइज देम, बट देन व्हेन यू रीराइट देम, व्हेन यू सॉल्व देम, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन, राइट? उसी के बाद संडे कम्स. अभी संडे के लिए भाई छुट्टी नहीं है, ठीक है. सो मंडे एक और मॉक टेस्ट लोगे एंड देन मंडे को उसका एनालिसिस करोगे. सो लाइक दिस यू विल कीप ऑन डूइंग इट टिल यू टेक 3 to 4 मॉक टेस्ट इन अ वीक, ठीक है. इसके अलावा बैंकर्स अड्डा की साइट पे यू गेट फ्री क्विजेज, ठीक है. बैंकर्स अड्डा की साइट पे आपको फ्री क्विजेज मिलते हैं. एटलीस्ट सॉल्व एटलीस्ट 3 क्विजेज इन अ डे, ठीक है, इन अ डे. अब वो 3 क्विजेज कौन से कर रहे हो? एक इंग्लिश, 1 फॉर रीजनिंग, 1 फॉर जीए, ठीक है. इसके सॉरी 1 फॉर मैथ्स. जीए के लिए यू आर ऑलरेडी वॉचिंग द सेशंस दैट आर देयर करंट अफेयर्स का, ठीक है. सो 1 थिंग. 4th चीज इज रिवाइज ऑल द वोकैबुलरी दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है. रिवाइज द वोकैब दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड प्रीवियस ईयर वोकैब भी, ठीक है. प्रीवियस ईयर वोकैब भी लर्न करना होता है, ठीक है. व्हाई डू आई से दैट? जनरली लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर वोकैब बैंक में नहीं आती है, बट दैट इज इनकरेक्ट. क्यों? 35 to 40% चांस होता है कि प्रीवियस ईयर वोकैब आ सकती है एग्जाम में, बैंक में भी, ठीक है. चलो एसएससी में तो 50% चांस होता है कि आएगी, बट हियर वी हैव 35 to 40% चांस कि हाँ प्रीवियस ईयर वोकैब रिपीट होती है. बट द थिंग इज, देखो एक चीज है कि हम ये नहीं जानते ना कौन सी रिपीट होगी. और वी हैव more than 10 lakh words in English. We can't learn each and every word. So what we can do is we can just learn what is asked previously, है ना, जो पहले पूछा गया उसके बारे में तुम कर ही सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द रिमेनिंग 15 to 17 days जो हमारे पास है. इन दोनों चीज को जरूर करना, ठीक है. ये दोनों चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज 2 things आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू इट एनी वे पॉसिबल, इन एनी वे पॉसिबल, ठीक है. ये जरूर करना. अच्छा, द 1 part दैट इज रिमेनिंग इज ग्रामर. ग्रामर के लिए आई वुड सजेस्ट डोंट रीड द रूल्स, डोंट लर्न द रूल्स मत याद करो. सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है. हर टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करो, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बट डोंट गो for rules now. Don't learn the rules. Go for the application of rules. ठीक है. जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है. सो this is what is quite important for you guys. 15-17 days रह गए हैं. So buckle up yourself और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करने की कोशिश करो. In these 2 things you are developing all the sections, right? सारे sections को आप डेवलप करो. So mock test is very important. Right, so that's it for today guys. Thanks a lot for joining me here. Bye bye, take care of yourselves and keep that smile on your face.